students, how are you? I hope you all are doing good. Today we are starting a new chapter which name is Institutional Representation of Democracy. And before starting the chapter, we have to know some important terms like representative of democracy means indirect democracy through elected representative. Next is universal adult franchise. It means the right to vote by all the adult citizens of a country without any discrimination on the basis of caste, creed, color, sex or status. Next is manifesto, which means document containing the declared principles and policies of a political party. Next is ideology, means ideas that form the basic principles of a party. Next is coalition government, is the type of government formed by several parties when a single party fails to get a clear majority in elections. Next is defection, that is the practice of leaving one party to join another. Now let's start the chapter. In the present times, most countries of the world have a democratic form of government. People elect their representatives for a fixed period of time. These elected representatives run the government as per the wishes of the people, and if they do not do so, people may reject them out in the next elections. And the right to elect representative is called the vote. People control the government through their votes. The system is termed as the democratic participation of the people, and the participation of the people makes a system democratic in real sense. It becomes a government of the people, by the people and for the people. Okay, everybody know what is a democratic government. Democratic government is a type of government जहाँ पर लोगों के द्वारा ही गवर्नमेंट चूज की जाती है, लोगों के लिए ही काम करती है और उन्हीं लोगों के बीच में से ही कुछ रिप्रेजेंटेटिव वो गवर्नमेंट बनाते हैं. ओके, जैसा कि अब्राहम लिंकन ने डेफिनेशन दी है, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. यहाँ पर सब जो सिटीजन्स हैं कंट्री के, उनके सबके पास एक ऐसा अधिकार होता है, एक राइट टू वोट होता है, जिससे वो डायरेक्ट गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपना लीडर चूज कर सकते हैं. अगर उनके द्वारा चूज की गई गवर्नमेंट, इफ दे डोंट लाइक इट, दे कैन रिजेक्ट इट इन न्यू इलेक्शंस. जब दोबारा से 5 साल के बाद इलेक्शंस होते हैं, तो अगर उन्हें वो गवर्नमेंट अच्छी नहीं लगती है, दे कैन रिजेक्ट द गवर्नमेंट एंड चूज द न्यू गवर्नमेंट. फाइन. नाउ नेक्स्ट टर्म इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. Universal adult franchise. Universal means in the whole world. Adult means the citizens who are above 18 years of age. Okay, and franchise means a type of right. Universal adult franchise, इसका मतलब क्या है? Everybody in the universe, they are having the right to vote if they are 18 plus. Fine. Okay, the right to express one's choice by vote is called franchise, and almost all scholars admit that franchise should be granted to all citizens without any distinction. This is called universal adult franchise. It is considered as the only basis of democracy. चाहे वो poor family से हैं, किसी भी class से belong करते हैं, any of the religion, any of the caste, they can vote. They are having right to vote and they can choose their representative. This is called universal adult franchise. The age of adulthood differs from country to country. For example, it is 16 years in Austria, Ecuador and Scotland, 18 years in India, Russia and England, and 21 years in Singapore and Malaysia. यानी ये एडल्ट इस कंट्री में इससे ऊपर जो होते हैं वो क्या होते हैं? एडल्ट कहलाते हैं, और उनके पास क्या होता है? राइट टू वोट. ओके. Now, rationale behind the universal adult franchise. There are so strong grounds or rationale behind the universal adult franchise that are, first is, it is based on political equality. One person, one vote is now the accepted principle in all democratic countries. The principle of equality holds that everybody, whether rich or poor, young or old, black or white, man or woman,
learned or literate should have equal voice in democracy. मीन्स पॉलिटिकल इक्वालिटी आती है कंट्री में. लाइक आप किसी भी सेक्स से हो, किसी भी स्टेटस के हो, किसी भी रिलीजन के हो, ब्लैक हो, वाइट हो, मैन हो, वीमेन हो, ओके तो सबके पास एक राइट टू वोट होता है. पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, सबके पास एक क्या आया, इक्वालिटी आई. व्हाट इज द इक्वालिटी? दे आर ऑल हैविंग राइट टू वोट. नेक्स्ट इज इट एस्टैब्लिशेस अ ट्रू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. यानी जब सबके पास राइट टू वोट होता है, दे आर हैविंग द फ्रीडम टू चूज द गवर्नमेंट एंड दिस रिप्रेजेंट अ ट्रू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. नेक्स्ट इज इट मेक्स द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल टू ऑल. Government affects all and as such it must be responsible to all. This is possible only when the right to vote is given to all. Now, what are elections? इलेक्शंस क्या होते हैं? जिसमें हम वोट डालते हैं. इलेक्शंस होते हैं किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को चूज करने के लिए. हम लोगों के पास बहुत सारी चॉइसेस होती हैं, हम उनमें से अपना लीडर चूज करते हैं बाय वोटिंग. दैट इज कॉल्ड इलेक्शंस. फाइन. Now, in an indirect or representative democracy, people have a representative government. It is through elections that people select their representative who later form the government. Now, what are the significances of elections in a democracy? Significance means क्या importance है democracy में elections की? First, the main basis of the modern democracy is the cooperation of the people with the government, and the people are given the right of formation of government by using their right of franchise or right to vote. लोग अपना जो उन्हें राइट टू वोट मिला हुआ है वो यूज़ कर पाते हैं और गवर्नमेंट को चूज़ कर सकते हैं. इट ऑल्सो जजेस द परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट. इफ द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट इज सेटिस्फैक्ट्री, द पीपल मे गिव द राइट ऑफ formation of the government to the same party again, otherwise it may change the rulers. अगर पीपल को, अगर सिटीजन्स को लगता है कि जो उन्होंने गवर्नमेंट चूज की है दे आर डूइंग देयर वर्क एट सेटिस्फैक्ट्री लेवल, तो नेक्स्ट इलेक्शंस में भी वो उसी को वोट करते हैं. अदरवाइज वो क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं. नेक्स्ट इज इलेक्शंस क्रिएट पब्लिक इंटरेस्ट इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड द गवर्नमेंट इज लीगलाइज्ड बाय पॉपुलर सपोर्ट. एंड इट इज ऑल्सो अ मीडियम ऑफ पीसफुल चेंज ऑफ गवर्नमेंट. बिना किसी वायलेशन के अगर हमें गवर्नमेंट पसंद नहीं आती है तो वी कैन चेंज इट पीसफुली. दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्शंस. फाइन. नाउ रीजंस फॉर एडॉप्शन ऑफ सीक्रेट बैलेट. ओके, सीक्रेट बैलेट. बैलेट क्या होता है? जिसमें हम वोट डालते हैं तो वो क्या होता है, सीक्रेट होता है कि किसी के आप देख नहीं सकते हो कौन किसको वोट कर रहा है. ओके, तो दैट इज सीक्रेट बैलेट. इन अ सीक्रेट बैलेट voters express their choice freely and without any fear or coercion. बिना किसी डर के वो अपना वोटिंग कर सकता है. राइट. द वोटर्स इज फ्री फ्रॉम पुल्स एंड प्रेशर अंडर द सीक्रेट बैलेट सिस्टम. जब सीक्रेट होता है, किसी को आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते हो कि इसने किसको वोट डाला है, तो वो क्या कहते रहते हैं, किसी भी प्रेशर से अपने आप को फ्री रखता है और किसी को भी वोट डाल सकता है अकॉर्डिंग टू हिज और हर चॉइस. It brings about desired changes but without any ill feelings and negative attitude. और जो भी चेंज चाहते हैं वो सीक्रेट बैलेट के थ्रू इक्वली पीसफुली हो सकता है. ओके, अगर हमें ये पता लगेगा इसने किसको वोट दी है, इसने किसको वोट दी है, किसके कितने वोट्स आ गए हैं, तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा क्या हो जाएंगे, मतभेद हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो जाएंगी. तो ये सारी चीज़ें अवॉइड हम कर सकते हैं बाय यूजिंग सीक्रेट बैलेट. Now here is an interesting fact. Secret ballot is an essential features of a democratic elections. It was first introduced in Australia in 1856. Okay, सबसे पहले 1856 में ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने ये यूज़ किया था और उसके बाद सीक्रेट बैलेट हर एक जगह जहाँ इलेक्शंस होते हैं वहाँ यूज़ होने लगा. Now come to the next topic, that is election procedure.
ओके, व्हाट इज द इलेक्शन प्रोसीजर? जैसे एक कोई बड़ी कंट्री है लाइक इंडिया, तो क्या होता है, इलेक्शंस होल्ड करना इतना इजी टास्क नहीं होता, बहुत पहले से ही इलेक्शंस की प्रिपरेशन शुरू हो जाती है। ओके, इलेक्शन कमीशन होता है जो ये सारा इलेक्शंस ऑर्गेनाइज करती है, एंड द नेम्स ऑफ ऑल द एडर्स लिविंग इन अ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी आर एनरोल्ड इन वन जनरल इलेक्ट्रोल रोल। और एक इलेक्ट्रोल रोल होता है जहाँ पर पूरी कंट्री के जितने भी वोटर्स होते हैं उनका सबका नाम लिखा होता है। ओके, Each state is divided into territorial constituencies in such a manner that the ratio between the population of each constituency and the number of seats allotted to it shall be the same throughout the state। और हर एक पोर्शन को कॉन्स्टिट्यूएंसी डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया जाता है ताकि अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, ताकि इतनी पॉपुलेशन के लिए ये कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई है, इतनी पॉपुलेशन के लिए ये कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई है, ताकि पीपल इजीली वोट कर सकें और अपना लीडर चूज कर सकें। नाउ क्या क्या स्टेजेस आते हैं इलेक्शन प्रोसीजर में? फर्स्ट है अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन डेट्स। सबसे पहले इलेक्शन की जो डेट है वो अनाउंस की जाती है। ओके, सेकंड इज फिलिंग ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स। अब जो इंटरेस्टेड है, जो अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव रखना चाहता है, वो क्या करता है, नॉमिनेशन पेपर को फिल करता है टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन। ओके, कुछ सिक्योरिटी अमाउंट होता है, कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं और कुछ ऐसी क्राइटेरिया होता है जो उनको फुलफिल करता है, वही इलेक्शन को कॉन्टेस्ट कर सकता है। उसके बाद अलॉटमेंट ऑफ सिंबल्स। अलॉटमेंट ऑफ सिंबल मीन्स नेशनल पार्टीज हैव परमानेंट सिंबल्स, जैसे कि बीजेपी का क्या है, लोटस का फ्लावर है। ओके, कांग्रेस का हैंड है। इस तरीके से जो भी नेशनल पार्टीज हैं उनके अपने परमानेंट सिंबल्स हैं। अदर पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स आर ऑल्सो अलॉटेड सिंबल सो दैट वोटर्स कैन रिकॉग्नाइज द कैंडिडेट इजिली। बाकी अगर कोई अदर कैंडिडेट पार्टी में खड़ा होता है या दूसरी कोई पार्टी है तो उनको भी क्या किया जाता है, सिंबल अलॉट किया जाता है ताकि जो वोटर है वो इजीली रिकॉग्नाइज कर सके। नेक्स्ट इज इलेक्शन प्रोपेगेंडा। Election propaganda means intensive propaganda is carried out after the filling of nomination papers of the candidate. And actual polling. Actual polling means on the fixed date the polling begins, the voters are given ballot papers containing the names and the election symbols of the candidate contesting the elections। okay? तो पहले प्रोपेगेंडा में आपने पढ़ा कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनके पास फ्रीडम होती है, वो अपनी पॉलिसी, अपने प्रोग्राम जो हैं वो वोटर्स को बताए कि उनके आने वाले टाइम में उनके क्या प्लान्स हैं, वो कैसे पब्लिक को बेनिफिशियल हो सकते हैं, तो वो अपने बारे में बताते हैं। ओके, उसके बाद एक्चुअल पोलिंग होती है, पोल बूथ बनाए जाते हैं जहां पर सीक्रेट बैलेट सिस्टम होता है, वहां पर जो वोटर है वो अपने अकॉर्डिंग पॉलिटिकल पार्टी को चूज कर सकता है। देन काउंटिंग द रिजल्ट। ओके, आफ्टर सीक्रेट बैलेट यानी आफ्टर वोटिंग क्या किया जाता है, रिजल्ट काउंट किया जाता है कि बैलेट बॉक्सेस जो होते हैं वो सील होते हैं, तो फिर उनको एक सेंट्रल वेन्यू पर भेजा जाता है फॉर काउंटिंग। ऑन द फिक्स्ड डेट द काउंटिंग टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ कैंडिडेट्स एंड द रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड बाय एप्रोप्रिएट अथॉरिटी। उसके बाद इलेक्शन पिटिशन। इलेक्शन पिटिशन का मतलब क्या है, अगर किसी को लगता है कोई लूजिंग कैंडिडेट है, उसको लगता है कुछ उसके साथ रॉन्ग हुआ है या फिर जो काउंटिंग है उसमें कुछ गलत हुआ है, तो वो एक पिटिशन कर सकता है इन द कोर्ट ऑफ लॉ। If the charges are proved, the elections is declared null and void and orders are issued for holding fresh elections in that constituency। तो अगर ऐसा लगता है, कोर्ट में ऐसा प्रूफ होता है कि हाँ ऐसा हुआ होगा या ऐसा हुआ है विद द प्रूफ्स, तो क्या करते हैं, फ्रेश इलेक्शन उस कॉन्स्टिट्यूंसी में दोबारा से कराए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज पॉलिटिकल पार्टीज। इलेक्शंस एंड पॉलिटिकल पार्टीज बोथ आर इंसेपरेबल। इंसेपरेबल है, दोनों क्या हैं, इंटीग्रल पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी है। एक पॉलिटिकल पार्टी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है फॉर कॉन्टेस्टिंग इलेक्शंस, क्योंकि अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होंगे, लोगों के पास ऑप्शन नहीं होगा, तो इलेक्शन कराने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, राइट। तो इस तरीके से जो पॉलिटिकल पार्टी हैं और इलेक्शंस हैं ये आपस में इंटर रिलेटेड हैं। एंड
The opposition parties criticize the policies and misrule of the government. They communicate the grievances and expectation of the people to the government. अब पॉलिटिकल पार्टी, जो पार्टी जीत जाती है, ओके, इतनी सारी पार्टीज होती हैं, तो जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो क्या होती है, विनिंग पार्टी या फिर हम रूलिंग पार्टी बोलते हैं, और जो उससे नेक्स्ट होती है, लूजिंग पार्टी होती है, उसको हम अपोजिशन बोलते हैं। तो अपोजिशन पार्टी जो है वो भी रूलिंग पार्टी को कई बार क्रिटिसाइज करती रहती है। इससे क्या बेनिफिट होता है कि रूलिंग पार्टी है वो अपना काम अच्छे से कर पाती है। ओके, नाउ व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन अ डेमोक्रेसी? क्या इम्पोर्टेंस है पॉलिटिकल पार्टीज की? फर्स्ट, एक्सप्रेस द विशेस ऑफ द पीपल. A democratic government express the wishes of the people and create public opinion regarding various problems of the country. It also creates interest in people towards national problems. In fact, these issues are vital for the success of democracy. लोगों क्या चाहते हैं लोग, तो ये कैसे आपका जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो एक्सप्रेस कर पाती हैं। ओके, नेक्स्ट इज क्रिएट इंटरेस्ट इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज. पॉलिटिकल पार्टी से लोगों में एक इंटरेस्ट आता है कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने का. पॉलिटिकल पार्टीज क्रिएट पॉलिटिकल इंटरेस्ट इन द कंट्री एंड एडुकेट पीपल. दे ब्रिंग order out of the chaos of a multitude of voters. Next is cooperation in government activities. Cooperation in every activity of the government is possible only due to the presence of political parties. They also contribute to the formation of public opinion by their efforts. Political parties are the foundation stone of any parliamentary democracy. क्योंकि जो parliamentary democracy है, parliament house जो होता है, लोकसभा राज्यसभा से बनता है, तो different parties के उसमें member होते हैं, तो कोई भी parliamentary democracy जो है वो political party के कारण ही stable हो पाती है. नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टी सिस्टम इन इंडिया. क्या क्या फीचर्स हैं इन पार्टी सिस्टम के इंडिया में? फर्स्ट है द नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया इज वेरी लार्ज. मैनी ऑफ देम हैव अ कॉम्युनल ओरिएंटेशन. बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी हैं इंडिया में, और बहुत सारी जो पॉलिटिकल पार्टी हैं उनके क्या है, कॉम्युनल ओरिएंटेशन क्या है, सेम है, यानी उनके मुद्दे जो उनके एम है वो सेम है. India is a large country. The problems of its different regions are different. Hence, regional parties have been formed to solve local problems. इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, अलग अलग जगह पर लोग रहते हैं, तो रीजनल पार्टीज होती हैं ताकि वो अपने रीजन की जो लोगों की प्रॉब्लम है उनको समझ सके, उनको सामने ला सके गवर्नमेंट के. नेक्स्ट इज many political parties have the same aims. In India, about 1.5 dozen political parties believe in socialism and claim to be real socialistic parties. इंडिया में बहुत सारी पार्टीज़ के सेम एम हैं, जैसे कि सोशलिस्ट होना, तो बहुत सारे जो पार्टीज़ हैं वो उसी अकॉर्डिंग काम करती हैं. For long, there has been one party dominance and coalition government are a recent development only. वैसे क्या होता है, एक ही पार्टी विन होती है, उसके बाद कोएलिशन गवर्नमेंट एक टाइप ऑफ गवर्नमेंट है. अगर लगता है जो जब काउंटिंग होती है तो लगता है दोनों पार्टी की सेम काउंट है, तो वो दोनों आपस में समझौता करके एक गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करते हैं जिसको कोएलिशन गवर्नमेंट कहते हैं. नेक्स्ट इज फैमिली डायनेस्टिक रूल एग्जिस्ट इन नियरली ऑल द पार्टीज. फैमिली जो डायनेस्टीज होती हैं उन्हीं की पार्टीज में आगे उन्हीं के बच्चे जो है हेरिडेटरी हैं वो उसी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं. एंड डिफेक्शन इज एन ओल्ड प्रैक्टिस. थ्रू एंटी डिफेक्शन एक्ट ऑफ 1985 had banned defection. Still some loopholes exist which are used to topple popularity elected government. And political parties in India are categorized into two types, that is national level parties and state level parties. National parties are the ones that have a presence all over India, and state parties और regional parties जो होती हैं वो single state only, अपनी single state की जो पार्टी होती है that is state or you can say regional parties. Now next is policies and programs of major national parties of India.
ओके अभी हमने पढ़ा कि इंडिया में बहुत सारी पार्टीज हैं, मल्टी पार्टी है इंडिया। तो जो मेन पार्टीज हैं, जो फेमस पार्टीज हैं, उनके इंडिया को लेकर उनका क्या कहना है, उनका क्या स्कोप ऑफ वर्क है, वो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है इंडियन नेशनल कांग्रेस। Indian National Congress is the oldest political party in India. It was established in 1885 by A.O. Hume, a retired English bureaucrat. It formed the first national government in India. सबसे पहली जो गवर्नमेंट बनी थी, सबसे पहली जो पार्टी बनी थी, that is the Congress Party. And there was a split in Congress in 1969. It was removed from power in 1977 and it returned to power in 1980. Again it lost the election in 1989, 1996, 1998 and 1999. Its election symbols is an open palm. ये आपने देखा है, ये इसका क्या है, सिंबल है. ओके It returned to power in 2004 and 2009 and formed a coalition government at the center. The Congress was rooted in 2014 general elections and was removed from power. और इसके बाद कभी हारती रही है कांग्रेस, कभी जीतती रही है, और फिर 2009 में coalition government बनाई है एंड 2014 में पावर से बिल्कुल रिमूव कर दिया गया. ओके यहाँ आप देखो, यहाँ कुछ पार्टीज के सिंबल दिए हैं, जैसे कि एलिफेंट है, दैट इज बहुजन समाज पार्टी, एंड लोटस इज द सिंबल ऑफ बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, एंड दिस इज द सिंबल ऑफ शेयर ऑफ पैडी एंड सिकल, दैट इज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया. ओके एंड दिस इज द सिंबल ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मैक्सिस्ट, एंड दिस इज द इंडियन नेशनल कांग्रेस, एंड क्लॉक इज द नेशनल कांग्रेस पार्टी, एंड दिस इज द सिंबल ऑफ ट्विन फ्लावर्स, दैट इज ट्राइनोमल कांग्रेस. ओके नाउ नेक्स्ट पार्टी है आपकी द भारतीय जनता पार्टी, दैट इज बीजेपी, जो अभी रूलिंग है इंडिया में. ओके द बीजेपी क्रिएटेड एन इंडिपेंडेंट स्टेटस फॉर इटसेल्फ आफ्टर द 7th Lok Sabha elections. In the general elections of 1991, the party won the second largest number of seats and formed a strong opposition. In 1996, the party secured the largest number of seats along with allies. However, it could not prove its majority on the floor of the House. In 1998 elections, it led the 14 parties alliance, formed a coalition government at the center, and in 1999, it formed an alliance of 24 parties called National Democratic Alliance, that is NDA, and formed the coalition government at the center. The BJP was removed from power in 2004 and 2009 elections, but it returned to power in 2014 and formed the government at the center. 2014 में फिर से जो BJP है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में आ गई. The भारतीय जनता पार्टी हैज़ लोटस फ्लावर एज इट्स इलेक्शन सिंबल. जैसा कि हमने पढ़ा, लोटस फ्लावर क्या है, इसका बीजेपी का नेशनल सिंबल है, इलेक्शन सिंबल है. The election manifesto of the BJP for Lok Sabha elections 2014 and composed a wide range of issues ranging from economic growth to social sector problems. Beside price rise, corruption, development of infrastructure, education, all-round boost to agriculture, manufacturing and services for some other areas that the manifesto focused on. And the silent points are as follows. Okay. इसको हम डिस्कस कर रहे हैं डिटेल में. क्यों? क्योंकि ये रूलिंग पार्टी है फ्रॉम 2014 ऑनवर्ड्स. ओके फर्स्ट क्या है, क्या क्या इश्यूज हैं, क्या क्या सामने आए हैं बीजेपी जब काम कर रही है. फर्स्ट है प्राइस राइज. बीजेपी ने जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं, ऐसा माना जाता है. बीजेपी प्रपोज टू लोअर इन्फ्लेशन बाय सेलिंग अप स्पेशल कोर्ट्स टू स्टॉप होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग, setting up a price stabilization fund and evolving a single national agriculture market, leveraging on technology to disseminate real-time data, area-specific crops and vegetables linked to food habits of the people. बहुत सारे जो चीज़ें हैं उनके क्या किए हैं, प्राइस जो है स्टेबल किए हैं बीजेपी ने, ताकि जो किसान हैं उनको नुकसान ना हो. पर लोगों का मानना है कि ये एक प्राइस राइज है. Next is employment and entrepreneurship. The manifesto declared that the party would accord high priority to job creation and opportunities for internship
and for the same. It has talked about steps such as labor intensive manufacture and housing, steps for self employment opportunities. और ऐसा माना जाता है एम्प्लॉयमेंट पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है बीजेपी ने, लोगों को जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत ज़्यादा अवसर प्रदान किए हैं, अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं. नेक्स्ट इज करप्शन. करप्शन को बीजेपी ने बिल्कुल रिमूव करने का सोचा है. इस वजह से जो इंडिया है अब ई गवर्नेंस में चेंज हो चुका है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पेमेंट्स हैं वो कैसे करते हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक मोड से करते हैं. तो करप्शन फ्री इंडिया बनाना ये बीजेपी का एक एम है. नेक्स्ट इज सेंट्रल स्टेट रिलेशंस. The party would make center-state relations smoother. For this, BJP wants to evolve a model of national development which is driven by the states. Next is decentralization and people's participation. The manifesto proposed a people-public-private partnership, that is PPPP, that is model to involve the people in governance as functionaries and facilitators. यानी इनका एजेंडा है कि लोगों को गवर्नमेंट में इन्वॉल्व करना एज अ फंक्शनल और एज अ फैसिलिटेटर ऑल्सो. नेक्स्ट इज ओपन गवर्नमेंट एंड अकाउंटेबल एडमिनिस्ट्रेशन. Administrative reforms would be a priority for the BJP. The manifesto claimed this would digitalization of government records and opening to government to draw expertise from the industry, academics and society into the services. And the hallmark of its governance model would be people-centric, policy-driven, time-bound delivery, minimum governance and maximum governance. Next is e-governance. There is a special mention of e-governance and IT as enable to empowerment. BJP will focus on increasing the penetration and usage of broadband across the country. कि लोग नेट का यूज़ करें, UPI करें पेमेंट के लिए, ताकि इंडिया को क्या करें, करप्शन फ्री बना सकें. ओके. नेक्स्ट इज रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट. Agriculture, rural development and poverty alleviation go hand in hand. Major thrust area for rural development would be to improve village level in infrastructure in terms of roads, potable water, education, health, supply chain, electricity, broadband, job creation, security in rural areas and linkage to markets. The party manifesto said. ओके, उनका क्या मेन एम है कि रूरल यानी गांव में जो लोग रहते हैं उनके लाइफस्टाइल को बढ़ाया जाए, वहाँ पर रोड बनाए जाएं, एजुकेशन की और ज़्यादा फैसिलिटी दी जाए, हेल्थ, सप्लाई चेन, पीने का जो पानी है वो अच्छा हो, ब्रॉडबैंड, जॉब क्रिएशन, सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ों को इंक्रीज़ किया जाए. अपार्ट फ्रॉम दैट बीजेपी हैज़ एडवोकेटेड फॉर अर्बन डेवलपमेंट एज इट्स प्रायोरिटी. वी विल इनिशिएट बिल्डिंग 100 new cities. Major steps will be undertaken in transport and housing the urban upliftment in India. उसके अलावा अर्बन जो सोसाइटी है उसमें भी बहुत सारे डेवलपमेंट बीजेपी ने सोचे हैं. नेक्स्ट इज वेस्ट एंड वाटर मैनेजमेंट. Cleanliness and sanitation will be given priority. Efficient waste and water management system will be set up and model towns will be identified for rolling out integrated waste management infrastructure, the manifesto added. Next is health services. हेल्थ सर्विसेज को बहुत ज़्यादा बढ़ाया है. बीजेपी हैज सेड दैट इंडिया नीड्स अ कॉम्प्रेहेंसिव healthcare policy. The current situation calls for radical reforms in the healthcare system with regards to national healthcare programs and delivery, medical and education and training and financing of healthcares. Next is economic revival. Fiscal discipline, revisiting the policy framework, banking reforms, encouraging savings and re-energizing the engines for growth are some of the solutions cited to ensure economic growth. Next is taxation and FDI.
बीजेपी ने कहा है it will rationalize and simplify the tax regime. It also said that it will bring on board all state governments in adopting GST and addressing all their concerns barring the multi-brand retail sector. FDI will be allowed in sectors wherever needed for job and asset creation, infrastructure and acquisition of नई टेक्नोलॉजी एंड स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट्स। बीजेपी ने कहा है कि टैक्सेशन सिस्टम है उसको काफ़ी इजी और सिंपल बना दिया है और एफडीआई जो है वो अलाउ की जा रही है जहां पर भी ज़रूरत होगी, और उसके अलावा इट एडॉप्टिंग जीएसटी, हर एक स्टेट में जीएसटी का बिल बनेगा। ओके, तो क्यों किया जा रहा है? बिकॉज इंडिया को करप्शन फ्री करने के लिए। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, एमएसएमई एंड सर्विस सेक्टर। For each of these sectors in the economy, the manifesto has promised measures for better productivity and job creation. The party said that it will aim to make investment and industrial regions as global hubs of manufacturing. Next is physical infrastructure for development. That is expanding work on freight and industrial corridors connecting northeast and Jammu and Kashmir with rest of the country through highways and railway lines, modernizing airports, economic model of port-led development, harnessing satellite technology, setting up national optical fiber network up to the village level, Diamond Quadrilateral project of high-speed train network, that is bullet train, are among the several things that BJP has promised. कि इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में इतने सारे चेंज लाने का बीजेपी ने प्रॉमिस किया है। नेक्स्ट इज other salient points, that is science and technology, focus on flora and fauna, health services, education sector, women's safety, social security, equal opportunities for minorities are among the other salient points that the manifesto has focused on. Now next पार्टी की हम बात कर रहे हैं, that is Communist Party of India. Communist Party of India, that is CPI, that was formed in 1925 in India. Earlier, it believed in violent methods of attaining its goal. During the Chinese War of 1962, the party split into two. The latest faction supporting China was called Marxist Communist Party, and the pro-Russia rightist faction are called Communist Party of India. Communist Party of India 1925 में इंडिया में बनी थी और 1962 के बाद ये दो पार्ट में डिवाइड हो गई। फर्स्ट इज मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी एंड सेकंड इज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ओके, तो क्या क्या प्रोग्राम इन्होंने प्रॉमिस किए हैं, क्या इनका मेन एजेंडा है? टू ओपोज इम्पेरियलिज्म एंड कैपिटलिज्म इन ऑल फॉर्म्स। ओके, सेकंड इज to nationalize all industries and to remove economic and social disparities. जितनी भी इकोनॉमिक और सोशल डिस्पैरिटीज़ हैं उनको रिमूव करना। टू टेक ओवर द होलसेल ट्रेड इन फूड ग्रेन्स एंड अदर इसेंशियल कमोडिटीज़। होलसेल जो ट्रेडिंग है उसको टेक ओवर करना। टू टेक स्टेप्स इन द इंटरेस्ट ऑफ हरिजन्स, बैकवर्ड्स क्लासेस एंड माइनॉरिटीज़। जो माइनॉरिटीज़ हैं या अनटचेबल पीपल हैं, लोअर कास्ट के लोग हैं, उनको मोटिवेट करना। टू टेक स्टेप्स इन द इंटरेस्ट ऑफ हरिजन्स, बैकवर्ड क्लासेस एंड माइनॉरिटीज़। जो हरिजन हैं, अनटचेबल पीपल हैं, लोअर कास्ट पीपल हैं या बैकवर्ड क्लासेस या माइनॉरिटीज़ हैं, उनको इम्प्रूव करने में इंटरेस्ट लेना। टू रिमूव द एडवर्स कंडीशंस ऑफ द फार्म लेबर्स एंड फैक्ट्री वर्कर्स एंड टू प्रिजर्व कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। जो फार्मर की कंडीशंस है उसको अपलिफ्ट करना। ओके, और कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देना। टू पुल आउट द कॉमनवेल्थ एंड टू एस्टैब्लिश क्लोज रिलेशन विद रशिया एंड अदर सोशलिस्ट कंट्रीज़। दूसरी कंट्रीज़ के साथ रिलेशन बढ़ाना जैसे कि रशिया और अदर सोशलिस्ट कंट्रीज़। नाउ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, दैट इज मार्क्सिस्ट CPIM। ओके, क्या एजेंडा है? दैट इंक्लूड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अप टू द एज ऑफ 14,
right to work to be made a fundamental right, allowances to be given to unemployed है उनको भी अलाउंसेस देना चाहिए, राइट टू वर्क सबके पास फंडामेंटल राइट होना चाहिए, नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स एंड ऑल मोनोपोलीज, फॉरेन ट्रेड टू बी ब्रोट अंडर पब्लिक अंडरटेकिंग, जितना भी फॉरेन ट्रेड है या नेशनलाइजेशन, जितनी भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट या फॉरेन ट्रेड है उसको पब्लिक अंडरटेकिंग में लाना, distribution of the land of big landlords among landless workers, all possible help to farmer. फार्मर और लैंडलेस जो लोग हैं उनकी हर तरीके से हेल्प करना, मिनिमम वेजेस फॉर द वर्कर्स, एंड टू resist the policy of imperialism and to establish close cooperation with the socialist countries. Now some major regional political parties. ओके कुछ स्टेट और रीजन ऐसे होते हैं जहाँ पर अपनी खुद की पार्टी होती है जो बहुत टाइम से एग्जिस्ट कर रही होती हैं, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस दैट इज JKNC ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उसके अलावा तेलुगु देशान पार्टी दैट इज TDP ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, असम गण परिषद दैट इज AGP ऑफ असम, एंड जनता दल ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़, उसके अलावा जनता दल है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, एंड ये जो डिफरेंट रीजनल पार्टीज हैं उनके सिंबल्स हैं. ओके ये आप रीड करेंगे. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रोल ऑफ ऑपोजिशन पार्टीज, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रोल ऑफ ऑपोजिशन पार्टी. ओके एक विनिंग पार्टी, उसके बाद जो नेक्स्ट जो सेकंड विनिंग पार्टी होती है यानी सेकंड हाईएस्ट स्कोरिंग होती है उसको क्या कहते हैं, ऑपोजिशन पार्टी. द MPs other than those of the ruling party form the official opposition. Their role may be summed up as under to provide a political alternative. अगर जो रूलिंग पार्टी है वो काम नहीं कर पा रही है तो एटलीस्ट हमारे पास एक पॉलिटिकल अल्टरनेटिव होता है, एक दूसरा अल्टरनेट होता है. ओके टू एक्सपोज द एंटी पीपल एक्टिविटीज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन इफ एनी. अगर कोई जो रूलिंग एडमिनिस्ट्रेशन है अगर उसकी कोई भी ऐसी एंटी पीपल एक्टिविटी है उसको एक्सपोज कर देना. थर्ड है टू अपोज द एंटी पीपल पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट. जो कोई भी गवर्नमेंट ऐसी चीज़ें बनाती है, ऐसी पॉलिसी बनाती है जो एंटी पीपल हो, लोगों के खिलाफ हो, उसको रिमूव कराना या उसको अपोज कराना. formulation of public opinions and to create political awakening, to express popular emotions and urge, and to act as a responsible opposition party. This is the role of opposition parties. Now next is a type of government that is formed by two or three governments, that is called coalition government. Means when any single political party fails to form its government owing to insufficient numbers of members in the parliament or the assembly, it seeks the help and cooperation of other political parties to form the government. अगर कोई विनिंग पार्टी, सिंगल पॉलिटिकल पार्टी वो गवर्नमेंट नहीं बना पाती किसी भी वजह से, या उसके पास इतने मेंबर नहीं होते हैं पार्लियामेंट में, या कोई भी कारण हो, तो वो दूसरी पार्टी की हेल्प लेती है और उसकी हेल्प के साथ एक गवर्नमेंट फॉर्म करती है जिसको क्या कहते हैं, कोएलिशन गवर्नमेंट. The first coalition at the center was formed in the 6th general elections held in 1977. The NDA government, that is 1999 to 2004, had a 24-party coalition government. The UPA government was also a coalition formed by more than 10 parties. Coalition government allow representation of various regional parties. However, decision making takes more time over certain issue because of different views of different party member. जो coalition government है वो एक रीजनल पार्टी की तरह काम करती है, लेकिन कई बार डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा देरी हो सकती है बिकॉज अलग अलग पार्टी के मेंबर्स के व्यूज़ भी अलग अलग होते हैं. At the state level, the coalition government were formed after the 4 general elections. Now, here is a quick recap of the chapter. Nowadays, most of the states in the world have a democratic form of government.
Universal adult franchise elections and political parties are important institutional forms and process of democracy. Universal adult franchise is the fundamental basis of democracy. It is based on political equality. In a representative democracy, elections are essential. Through secret ballot system, voters express their choice freely. There is a definite election procedure starting with announcement of election dates and ending with announcement of results, followed by election petitions. Political parties play an important role in democracy and create interest in political activities. In India, there are several national parties while others are regional parties. All political parties have their allotted election symbols, policies and programs. All political parties have their allotted election symbols, policies and programs. The Indian National Congress is the oldest political party in India. And the regional parties are strong in several states because they represent local people's wishes and fulfill their aspiration in a better way. The opposition plays an important role in the government. And the first coalition government at the center was formed in 1977. आई होप बच्चों यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर. एक बार फिर से इसको पढ़ेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद करेंगे.